I have heard many people say that India derives its strength from the women who made a difference, while the rest of the world have had their strong men leading them. Indians have given equal share of public space to their brave and intelligent women. Indian history has witnessed many women with exceptional bravery and intelligence who have contributed via their thoughts and deeds. From the time of Manusmriti, women have held in high esteem. Even in Vedic era, Gargi, Maitreyi, Katyayani, etc. were well known and were treated with reverence. We all know about 20th and 21st century women. These women have showcased their talents at the world level and have excelled in their chosen field. To name a few, Harit Kaur, first Indian woman to perform solo flight. Kalpana Chawla, the astronaut. Justice Fatima Bibi, the first woman judge of Supreme Court. Indra Nooyi, the Pepsi woman. Bachendra Pal, first woman to climb Mount Everest. Dr. Aditi Pant, the eminent oceanographer, first woman to have set foot on the Antarctic. Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, M.S. Subbulakshmi, P. Sushila from the world of music, Neelam Dhawan from Microsoft, Shakuntala Devi, the human computer. The list is unending. आज हम आपको समय के उस दौर की ओर ले जा रहे हैं जब आप और हम नहीं थे। इनकी यादें इतिहास के चंद पन्नों में सिमट कर रह गई हैं। इन्हीं में से कुछ की पहचान आज हम दोबारा से करवाने जा रहे हैं। These are the women of freedom era. Let's cherish their hardships, sacrifices, achievements as a mother, wife, daughter, and leader. Aoun and Bane Group presents Heroines of India. Rajmata, founder of Maratha Empire. Jizabai, the mother of Shivaji, who was the protector of the country as well as religion. Maybe she was the only woman in the history of mankind who decided the purpose of her child even before he was born. Jizabai carried out both the roles of affectionate mother as well as giving aptitude for the accomplishments as a father in his absence. Only due to training from Jizau, Shivaji could vanquish the centuries of Muslim rule and establish Hindu Swaraj. She was a guide who shaped his early years. आमच्या मनात हिंदवी स्वराज्याची संकल्पना साकारलेली प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी शिवबा तुम्हाला ज्ञान, चातुर्य, पराक्रम आणि संघटन अशा विविध गुणांचं बाळकडून द्यायलाच हवं. She reflected the glory of Mother Durga and was no less inspiring or sacred. अशा भोसले घराण्याच्या आदर्श सुनेने अपने पुत्रावर महान संस्कार केले। कहते हैं माँ के पैर के नीचे स्वर्ग होता है और वही होती है उसकी प्रथम गुरु। शिवबा आपण रामराया आणि अजिंक्य अर्जुनाचे वंशज आहोत। आपल्या स्वातंत्र्यासाठी हे युद्ध करायलाच पाहिजे।
हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा आहे बाळा. शिवाजी महाराज की जननी उनकी मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार थी. In 1674, Shivaji held a vast ceremony declaring himself an independent ruler. Everything Jijabai lived for had finally bore fruit. 12 days later, she died. एक रात्रि सही अगिरी हसनो एक रात्रि सही अगिरी हसला एक रात्रि सही अगिरी हसला हसता न बिसला अनंत्याला कसला झाला उमगेना मानवाला. वीरता और शौर्य की बेमिसाल कहानी बीबी साहिब कौर फुल्कियान, a princess of Patiala. She was the only woman in Indian subcontinent to win a battle over British general. Sahib Kaur was a warrior and leader of men. She played an important role in the history of Satluj states from 1793 to 1801. According to George Thomas, she was a better soldier than her brother. At a very young age, she was married to Jaimal Singh of Kanhaiya clan, who was ruling Gurdaspur district. In view of mounting dissensions within his state, Raja Sahib Singh called his elder sister, Sahib Kaur, and entrusted to her the office of Prime Minister. Sahib Kaur was a woman of remarkable leadership and diplomacy. In 1794, under the command of Antarao and Lakshman Rao, a large Maratha force attacked. The Sikhs were severely outnumbered and would have retreated. At that moment, Sahib Kaur, alighting from the chariot, made a brave call. सिख कौम हमेशा वास्ते शर्मिंदा हो जांदा अगर उना दे मुखिया दे बहन या औरत तू वड़िया जांदा, क्योंकि मैं एक वारी जो कदम आगे बढ़ाया तो पीछे नहीं हटना. Since Maratha were in a winning position, they started making plans for their victory and celebrations to follow. At that moment, Sikh force advanced and attacked them. Their defeat turned into victory. पर बदकिस्मती देखिए, अंत में बीबी साहब के भाई ने ही उसे कैद किया और मरवा डाला. The first woman ruler of India, Razia Sultan, daughter of Altutmish, who was slave of Qutbuddin Aibak. इन्हीं से गुलाम शासकों की शुरुआत हुई. अल्तुतमिश अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत करते थे. उनके दरबार में 40 सरदार थे जिन पर वो पूरा विश्वास करता था क्योंकि वो उसके वफादार थे. एक दिन अपनी मृत्यु समीप देखकर अल्तुतमिश ने अपने सरदारों को बुला भेजा और कहा, मेरी बेटी शासन और राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखती है. मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद शासन की बागडोर वही संभाले. तुर्की लोगों को एक महिला उन पर राज्य करे ये कतई पसंद नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी सम्मति दे दी. 17-18 साल की रज़िया एक सशक्त उत्तराधिकारी साबित हुई. रज़िया was the only woman who sat on the throne and ruled India. Her reign was only for 3 years, yet her bravery, struggle and undaunted spirit has been preserved in the treasures of history. रज़िया के शख्सियत का दूसरा पहलू था उसकी मासूम मोहब्बत और प्यार भरा दिल.
जो अबिसीनिया याकूत के नाम से धड़कता था। उन दोनों की बढ़ती मुलाकातें सभी नापसंद करते थे। ऐसे में रज़िया अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। ए दिले नादां, तेरी आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है? करके मोहब्बत तुमसे हमने तन्हाई पाई, हम पास थे फिर भी दूर रहे, मजबूर थे हम, मजबूर रहे। इन हालातों का विद्रोहियों ने फ़ायदा उठाया और बगावत कर दी। रज़िया ने फिर मात दी। मैं अपने निजी मामलात में किसी की दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एक शासक हूँ और मुझे सिर्फ एक कमजोर औरत न समझा जाए। In hindsight, it seems that nothing could have stopped Razia from becoming one of the most accomplished rulers, except her love for Yakut. कुल मर्यादा हेतु जान देने वाली रानी पद्मिनी, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की अद्वितीय सुंदर पुत्री पद्मिनी, उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर थी। इवन टुडे पीपल टॉक अबाउट द लीजेंडरी ब्यूटी ऑफ पद्मिनी। इस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था। पद्मिनी के सौंदर्य की चर्चा उसके कानों तक जा पहुंची और वो उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। श्रुति ये है कि राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता चलते कई महीनों की घेराबंदी और युद्ध के बावजूद खिलजी किले के अंदर नहीं घुस पाया। अंत में उसने संदेश भेजा। राजा जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। सुना है आपकी रानी बहुत ही खूबसूरत है। उनके खूबसूरती के चर्चे हमने कई बार सुने। बस एक बार उनके दीदार करवा दो, अल्लाह कसम हम अपना घेरा उठा के तुरंत ही दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। ये सुनकर राजा रतन सिंह आग बबूला हो उठा, लेकिन पद्मिनी का स्वभाव साहसी और दूरदर्शी था। उसने संदेश भिजवाया। मैं आपसे मिल तो नहीं सकती, ये हम राजपुतानियों के संस्कृति के विरुद्ध होगा। आप केवल मेरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। खिलजी ने तुरंत हामी भर दी। बहुत खुश हुआ। खिलजी प्रतिबिंब देखकर सम्मोहित हो गया, अभिभूत हो गया। बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरती है। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लौटते समय उसने धोखे से राजा रतन सिंह को कैद कर लिया। रानी ने कूटनीति का जवाब कूटनीति से दिया। मैं अपनी दासियों के साथ अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। खिलजी ने खुश होकर उसे बुला भेजा। रानी ने दासियों की जगह सैनिकों को डोली में बिठाया और शिविर के पास पहुंचते ही धावा बोल दिया। खिलजी को मुंह की खानी पड़ी। हार से लज्जित होकर 6 महीने बाद उसने फिर आक्रमण किया। इस बार राजपूतों की हार निश्चित थी। उन्होंने केसरिया बाना पहना। सखियों, हमने हमेशा से
अपनी कुल परंपरा, मर्यादा और गौरव की रक्षा की है। आज वो वक्त फिर आ गया है। किले के बाहर शत्रु हमारी आन बान मिटाने की ताक में है। अब हमारे सामने जौहर के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है। चलो सखियों, जौहर की तैयारी करें। चलिए। हजारों रमणियों ने जौहर किया, सब जलकर राख हो गया। खिलजी जीत कर भी हार गया, उसके हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन पद्मिनी की कीर्ति गाथा आज भी अमर है। भक्ति और प्रेम की लाजवाब मिसाल मीराबाई। राजस्थान की भूमि साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। युद्धों की इस भूमि पर एक प्रेम की मूर्ति अवतरित हुई। नाम था मीरा। भावावेग, भावनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति, प्रेम की ओजस्वी प्रभावधारा, प्रीतम वियोग की पीड़ा की मर्मवेदी प्रखरता से अपने पदों को अलंकृत करने वाली प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा। कृष्ण भक्ति और काव्यधारा की कवयित्रियों में मीराबाई का स्थान अग्रगण्य है। उन्होंने 4 महान ग्रंथों की रचना की। बरसी का दायरा, राग सोरठ के पद, राग गोविंद और गीत गोविंद टीका। बचपन में एक बार सामने से आती हुई बारात को देखकर मीरा ने अपनी माँ से